7, 9 left, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4 right, 5, 6, 7, 8, 9, right leg forward, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4 left, 5, 6, 7, 8, 9 left, 10, 11, 12. Fast rounds, 2 fast rounds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 slow rounds. 1. Let's chant Om Suryaya Namaha. 2. 3. 4 right. 5. 6. 7. 8. Breathe here 5 times. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4 left, 5, 6, 7, 8. Breathe here 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg forward. Right leg forward. 11 and 12.
Let's go to the wall. दीवार के पास आ जाए. And let's just sit. Keep our hands up. And let's count till 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And you have to smile. If it's paining, you have to smile. अगर दर्द हो रहा है तो और बड़ी मुस्कान रखिए. 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2. ओ भाई सही से करो यार. 5. Come on. 6, 7, संदीप प्रजापति भाई. 8, 9, and 50. Well done. Clap for yourself. If you did 50, very good. Very good. We are progressing. Let's stand straight. क्या हो गया भाई संदीप प्रजापति? And let's take our hands up. Tadasana. ए भाई ऐसे Every breath in, stretch up. ऐसे कौन काउंट करता है यार? थक गए क्या भाई? Look towards your hand. करो करो सही से करो यार. हम भी करो, थक गए यार हम भी. ठीक है भाई करो. म्यूट कर दो. भाई. And breathing out, slowly go forward and down. And stay there. शरीर को ढीला छोड़ दे. And slowly go left to right. Slowly go left to right. And breathing in, come up. Do a namaste. And breathing out, go to the right side. Breathe in, center. Breathe out, left. Breathe in. Breathe out, right. Body is in one plane. Don't tilt like this. Keep your body in one plane. Breathe in, come back up. And breathe out, go to the left side. Stretch your right side. Breathe in and breathe out to the right. Stretching your left side. Breathe in, stretch up. And breathe out, bring your hands parallel to the floor. Now push the wall. Suppose there is a wall. आपके दोनों तरफ एक दीवार है जो आपको दबा रही है और आपको उसको दबने नहीं देना है. So you have to push the wall. Pull the fingers towards you and push the wall out. Now this is a very good exercise to release the stress in the neck region. जो हम लोग दिन भर फोन में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं नीचे, तो उससे गर्दन में जो दर्द होता है वो इससे एकदम immediately चला जाएगा. Keep pushing the wall out and pull the fingers in. हाथ बाहर और उंगलियां अंदर की तरफ. अगर कुछ हो रहा है तो मुस्कुरा सकते हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो और बड़ी मुस्कुराहट रख सकते हैं. होगा. And slowly bring your hands down. लाए हाथ घुमा के 3 बार. And relax. Now let us lie down on the stomach. पेट के बल लेट जाए. दोनों हाथों की मुट्ठी बना ले और जंघा के नीचे रख दे. Make a fist of your hands and keep it under your groin. Breathing in, lift both the legs up together. Shalavasana or the locust pose.
कीप ब्रीदिंग, सांस रोकेंगे नहीं, सांस लेते रहे। ऐसे समझे जैसे कोई आपको पीछे से खींच रहा हो। Stretch your legs as if someone is pulling your legs from behind. And breathing out, slowly come down. Take your hands in the front. दोनों हाथों को सीधा ले जाए सामने की तरफ. And slowly lift your hands up and feet up like a Superman. Fly. Only your stomach is on the floor. Rest the entire body is in the air. सिर्फ पेट जमीन पर है. And slowly come down. धीरे से नीचे आ जाए. अपने पैरों को मोड़ ले. धीरे से अपने टखनों को पकड़ ले. Hold your ankles. And breathing out, lift up. Dhanurasana. सांस लेते रहे. Make a tight grip with your hands. जितना आप टाइट से पकड़ोगे पैरों को उतना आपको अपर बैक में अच्छा स्ट्रेच फील होगा. Tighter the grip, the better stretch you have in the upper back. And breathing out, slowly come down. Relax here. Few breaths. Keep lying down. See, with every breath in, the stomach is pushing the floor. And breathing out, the stomach goes in. And slowly come on your back. धीरे से पीठ के बल आ जाए. Breathing out, let's come in Naukasana. And let's hold the position. Keep breathing. Do not hold your breath. Hold the posture. And breathing in, come down. Breathing out, bring both the knees together. Pavan Muktasana. Tuck your nose between your knees. नाक को घुटनों से लगाए. Slowly and gently massage your lower back. Just go forward and back. Rock and roll your body. And go left and right. Become aware of the contact points in the lower back. And gently massage. And relax. Keep your heels on the floor. अपने एड़ियों को जमीन पे रख दे. शरीर के पास ही हो. Knees are pointing to the ceiling and heels are close to your body. Now lift your stomach up. पेट को ऊपर उठाए. सेतु बंद आसन. सांस लेते रहे. और धीरे धीरे नीचे आ जाए. दोनों पैरों को सीधा कर ले और शवासन में विश्राम करें.
Lie down in Shavasana. Relax your feet. Relax your legs, your hands, stomach, chest. Just let go of the control over the body. Let the breath also happen naturally. आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सांस भी अपने आप चल रही है. धीरे से दाहिनी करवट लेते हुए उठ के बैठ जाए. Turn to your right side and sit up. And let's do the Ardha Matsyendrasana, the pose that Rajesh ji said yesterday for diabetes. And anyways, it is good to activate our liver and our pancreas. So keep your left heel close to your right hip. Cross the right leg over. Keep your back straight. Take your right hand back. And use your left hand to twist. Look over your right shoulder. This is also called as the terrible twist. And relax. The other side. Right heel is close to your left hip. You're crossing the left leg over. Use your left hand to support and right hand to twist. Keep the back straight and look over your left shoulder. And relax. You can sit in Padmasana. This is Padmasana. Ardha Padmasana is one leg over and Sukhasana is both the legs down. So whichever you're comfortable, keep your eyes closed and take both your hands up. Parvatasana. With every breath in, stretch up. With every breath out, hold the posture. Be like a mountain, still and stable. And make a fist of your right hand. Hold your right wrist with your left at the back and go forward and down. Yoga Mudra, the seal of yoga. See if you can touch your forehead to the floor. Breathe in, come back up. And let's do the Nadi Shodhan Pranayam. Nadi Shodhan Pranayam, left hand in Chin Mudra. Keep it on the left knee or left thigh. Right hand, two fingers between your eyebrows. Thumb on the right nostril, ring finger on the left. Breathe in. Close the right, breathe out left. Breathe in from the left. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left. Breathe in left. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left.
Continue on your own. Keep your neck straight and back straight. Continue. And slowly and gradually relax. Keep your eyes closed. आंखें बंद रखते हुए आराम से बैठ जाए. विश्राम करे. रिलैक्स. Take a long deep breath in and breathe out. Become aware of the noise in the surrounding. वातावरण में हो रही आवाजों के प्रति सजग हो जाए. ट्रैफिक की आवाज, पंछियों की आवाज, किसी के बात करने की आवाज, sound of the birds, sound of people talking, sound of the fan or AC. Accept all the noises in the surrounding. Become one with the nature. Breathe in and breathing out, relax your body. Become aware of your body. Your body is a precious gift from Mother Nature. हमारा शरीर एक सुंदर उपहार है प्रकृति का. Take your attention to your feet. पैरों की ओर ध्यान ले जाए. Take your attention to your knees. घुटनों की ओर ध्यान ले जाए. Thighs and hips. जंघा और नितंब. एक लंबी सांस भरे और छोड़े. Take your attention to your genitals, abdomen, stomach,
जन इंद्रियों की ओर ध्यान ले जाए, पेट की ओर ध्यान ले जाए, टेक योर अटेंशन टू द चेस्ट एरिया, छाती की ओर ध्यान ले जाए, शोल्डर्स एंड हैंड्स, कंधे और हाथ, ब्रीद इन and breathing out, relax. Take your attention to the neck region, back of your head, top of your head, and all the facial muscles. गर्दन, सिर का पिछला हिस्सा, सिर की चोटी पे ध्यान ले जाए और पूरे चेहरे को विश्राम दे. Breathe in and breathing out, relax your whole body. Become aware of your thoughts. अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए. You have good thoughts or bad thoughts. Accept them as it is. आपको अच्छे विचार आ रहे हो या बुरे विचार आ रहे हो, दोनों को स्वीकार कर ले. Do not resist any thoughts. किसी भी विचार का विरोध नहीं करेंगे. Become aware of your feelings and emotions. अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए. Either you're feeling good or you're feeling bad. Be okay with it. आपको अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, दोनों को स्वीकार कर ले. You are peace, you are joy, you are love.
आप ही प्रेम हो, आप ही खुशी हो, आप ही शांति हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। Again become aware of your feelings and emotions. अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। Become aware of your thoughts. विचारों के प्रति सजग हो जाए। Become aware of your body and surrounding. शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाए। एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। Take a deep breath in and breathe out. With a gentle smile on your face, slowly and gradually you can open your eyes. चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you, Saroji. Abhi, there is a time, so can we take some questions? Yes, I'm taking that. Before I take some questions, I would like to share my experience. I was in IIT BHU from 2010 to 14, and I happened to just encounter this Art of Living program in my second year. तो मैं जब सेकेंड ईयर में था तो मुझे किसी ने बोला कि अरे ये बहुत अच्छा होता है, कर लो। तो आई वॉज लिटिल एप्रीहेंसिव, लगा कि करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ध्यान योगा ये सब मेरे लिए नहीं है। बट आई जस्ट गेव इट अ शॉट। थोड़ा सा रिस्क लिया, थोड़ा सा सोचा चलो एक बार करके देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए है कि नहीं है। एंड आई हैपन टू डू द प्रोग्राम एंड लकीली माई टीचर वॉज राजेश जी. So Rajesh ji used to come to BHU every year, and it's been, I think, since 2006 he has been teaching in BHU the Art of Living Yes Plus program. And there are so many people who have benefited personally. I know so many friends. So in today's world, you know what? One thing is very, very important. That is our emotional quotient. हम लोग का IQ, I'm sure सबका अच्छा ही होता है। अगर आप engineering college में हो तो you have a nice IQ, you have a science background, everything is set. What we need to train on, and what this human values program is also doing, is training on our EQ, the emotional quotient. And personally speaking, जब मैं second year में था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों engineering कर रहा हूँ। मतलब शुरू होते ही ऐसे लगने लग गया कि why did I choose engineering? But after I did the Art of Living program, and it so happened that my entire perspective changed. मेरा मतलब देखने का नजरिया ही बदल गया. I was more energetic, I was more confident. You know, I couldn't imagine taking a session for almost 1 million people. It's very tough, and especially when people are engineers and you know how engineers are, it's very tough to take a session. But today I'm very comfortable, very confident. So all these things have developed with time because of the Art of Living program. So the Art of Living program is more like tools and technique based. वहाँ पे of course हम लोग 10-15 मिनट थियोरी होता है, बट बाकी जो समय होता है उसमें पूरा टेक्निक सिखाते हैं। चाहे ऐसा सिचुएशन है तो ऐसे करो. And there's a lot more about breathing. You know, I'll tell you one thing. Our breath and mind are connected to a very great extent. हमारा मन और सांस ना एकदम ऐसे जोड़ है. So जैसे ही मन में कुछ होता है ना, तुरंत हमारा सांस बदलता है. Whenever there's anything in the mind, immediately the first thing that changes is a breath.
the rhythm of the breath. You know, have you seen someone getting angry? How is the breathing pattern? Like this, isn't it? If someone is sad or if you have had a long day, agar aap bahut thak ke aaye ho, we usually do this. The outgoing breath is long. Someone comes and gives you a red rose. Someone, suppose, very hypothetical, but still assume that someone comes and gives you a red rose. How would your breathing be? Really? So anything in the mind, the first thing that changes is the rhythm of the breath, right? So if we work on the breath, anything in the mind can also change. You know, I usually tell this. 3 important things as a student are, first is confidence. I'm sure सभी लोगों को नमस्कार। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तो सर। सब लोग जो है आज कैसा लगा बेटा सभी लोगों को? सूर्य नमस्कार ये आपको बढ़िया अच्छा है सर। वार्म अप करने के बाद जो है सूर्य नमस्कार और चीजें जो है कंटिन्यूअस रखनी चाहिए। तो ये बहुत अनिवार्य है। तो आयुषी मैम की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा लेट ज्वाइन की थी मैम, तो मैम अभी ज्वाइन कर रही हैं, थोड़ी देर आपसे बात करेंगी, तो कल से वो कराएंगी। और आयुषी मैम, तो अभी आप लोगों को जो है डेली वार्म अप करना है। सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार करिए, और फिर ये टेबल टॉप, और इसी तरह से कल्भासन, पवन मुक्तासन, और इसी तरह से हलासन, धनुरासन, ये सारे करने चाहिए। इससे जो है स्ट्रेचिंग रहती है, कमर में जो दर्द नहीं होगा। और आप मान लीजिए आप ताड़ासन कर रहे हैं, वृक्षासन कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन तो डेवलप हो गई, साथ में लंबाई भी बढ़ती है। तो इसके अलावा कुछ और आसन हमने कल जो आपको बताए थे, बैठने वाले आसन में आप जैसे वज्रासन पे ही बैठे, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना बहुत जरूरी होता है। 10 मिनट डाइजेशन के लिए, तुरंत जो है डाइजेशन अच्छा होता है। खाना खाते समय भी आप जो है कुर्ती मेज का इस्तेमाल ना करके या तो आप सुखासन में बैठिए या वज्रासन में बैठ के खाइए, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो वज्रासन बहुत ही अच्छा है। वज्रासन में लास्ट में आप मंडूकासन, शशकासन, बालकासन ये भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपको जो गैस होती है वो खत्म कर देगा। दूसरी बात, जांघों में दर्द और जो फैट होता है एक्स्ट्रा, वो खत्म करेगा। वज्रासन में बैठने से एक फायदा ये भी है कि आपके घुटने में जो दर्द होता है वो खत्म हो जाएगा। कभी कभी सो के उठने के बाद लगता है कि शरीर में अकड़न ऐसी आ गई है, तो ये खड़े वाले आसन जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, ताड़ासन करके और फिर इसके बाद दाहिने बाएं तरफ जो झुका जाता है, अभी सबने जब कराया था, तो झुकने का भी करके और फिर इसके बाद वज्रासन में अगर आप बैठ जाएंगे थोड़ी देर लिए, तो आपका जो दर्द है, अकड़न है, सब खत्म हो जाएगी। इसके करने के बाद फिर आप वार्म अप करिए। वार्म अप करने के बाद आप सूर्य नमस्कार करिए 10 से 15 बार, पहले धीरे धीरे फिर जल्दी जल्दी करिए। तो ये जब कर लेंगे तो आपका सूर्य नमस्कार में ही सारे आसन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर लगता है कमर में दर्द है, तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि कैसे हम जान संचालन ये सब करते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो ये सब आसन जो है बैठ के लेट के भी कर सकते हैं। सबसे आखिरी में शवासन कर लीजिए। शवासन कब करते हैं? जब हमें भ्रामरी वगैरह करना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या काम होता है कि जब भी आप उठे तो थोड़ा सा वार्म अप होने के बाद आपको जो है सांसों के लिए करना भस्त्रिका प्राणायाम, जो कल आपको बताया था हमने कि दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर ऐसे खींचना, फिर नीचे लाना, इस तरह से कर सकते हैं। वो बोला जाता है भस्त्रिका। भस्त्रिका आसन से फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। कुछ इस तरह से आप सीख सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। इस तरह से आप ले लिया, या सीधे दे सकते हैं। ये कई बार ऐसे करने से क्या होता है ना कि भस्त्रिका से हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। फेफड़े जब आपके खुल जाएंगे तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा अगर आप जो लोग स्किपिंग करते हैं, कुछ लोग रस्सी कूदने वाला, कैमरा शायद आ नहीं रहा है पूरा, स्किपिंग कितने लोग करते हैं? रस्सी कूदने का।
अगर आप उसमें करिए तो जो लोग दौड़ने नहीं जा सकते या एक ही जगह रहते हैं तो रस्सी एक ले लीजिए, रस्सी कूदने वाला करेंगे। तो किसी दिन मौका लगे तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। मैं 300 बार रस्सी कूदता हूँ, समझ लीजिए। इस समय जो है, इस समय थोड़ा सा बंद है हमारा, तो मैक्सिमम 100-120 तक हम पहुंचा देते हैं, लेकिन 300 बार छात्रों को करना चाहिए। इससे हार्ट मजबूत होता है। आयुषी इससे मैडम ने अच्छा ज्वाइन कर रस्सी लिया। कूदने से क्या है कि कई प्रकार के आसन हो जाते हैं। तो हमारे साथ सिन्हा सभी जुड़ गए हैं। मेरे ख्याल से आयुषी मैम आ गई हैं। मैम की तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी। हाँ, आयुषी मैम आ चुकी है, तो मैं आयुषी मैम से आपको मुलाकात करा दूँ। थोड़ा सा मैम आपको निर्देश देंगी, बाकी सारे आसन आप करिएगा। तो आयुषी मैम आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगी मैम। नमस्ते सर, धन्यवाद। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और आप सबसे क्षमा भी चाहती हूँ कि 2 दिन का सेशन मैं अटेंड नहीं कर पाई। कार्यक्रम की वजह से थोड़ा सा व्यस्त रही, ऑफिस की वजह से। तो आज हम लोग कुछ अलग व्यायाम आसन करेंगे। तो शवासन में, क्योंकि कार्यक्रम काफी वैसे भी लेट हो चुका है, तो गुरु मंत्र का उच्चारण आज हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग सेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो तड़गासन से हम लोग अपना सेशन प्रारंभ करेंगे। शयन स्थिति में आकर अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पीछे लेके आएंगे और अपने हाथों को, जैसे एक बच्चा सोते समय अपने हाथ ऊपर छोड़ देता है खुले, उस तरह से अपने हाथों को ऊपर की ओर खुला छोड़ देना है। तो तड़गासन करेंगे हम लोग। सब लोग अब शयन स्थिति में आएंगे। शयन स्थिति में अपने पैरों को सीधा खोल के रखेंगे। अपने हाथों की हथेली को जमीन पे लगा के एकदम सीधे हाथ रखेंगे, सर ऊपर आसमान की ओर। अपने पैरों को मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे घुटने से। अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, आसमान में खुला छोड़ देंगे। अपने हाथों को जमीन पे लगा के रखेंगे। दोनों कोहनियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करना है, हाथ ऊपर की तरफ खुला छोड़ देना है। पैरों को पंजे जमीन पर लगा के रखने हैं। अभी लोग करिए मैम के शोल्डर साथ, और तो कुछ लोग थोड़ा सा शवासन है, रिलैक्स हो जाएगा थोड़ी। शोल्डर और कमर के बीच में जो गैप आ रहा है उसको महसूस करिए। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अपने पैरों को सीधा करेंगे। अपने हाथों को सामने से सामने की ओर लेके आएंगे। एक बार फिर से हम लोग करेंगे तड़गासन का अभ्यास। शयन स्थिति में आने के बाद अपने हाथों को सीधा रखना है। अपने पैरों के पंजे और एड़ी आपस में जुड़ी हुई, नजर ऊपर सामने की ओर। पैरों को पीछे से मोड़ते हुए घुटने से मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे। अपने हाथों को सामने से उठाकर पीछे की ओर खोल के रख देंगे, हाथ एकदम ढीले। कोहनियों को जमीन में लगा के रखना है। पैर के पंजे जमीन में टिके हुए, जितना संभव हो उतना ही करना है। धीरे धीरे सांस लेनी और छोड़नी है। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। इसके बाद अब हम लोग करेंगे सुलभ पवन मुक्तासन। अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे। पैरों को घुटने से पकड़ते हुए अपने हाथों की सहायता से अपने शरीर की ओर ऊपर लेके आने का प्रयास करना है। गर्दन जमीन पर लगा के रखनी है। सुलभ पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मोड़ते हुए शयन स्थिति में पीछे की ओर लेके आएंगे। अपने हाथों की सहायता से अपने पैरों को शरीर के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। नजर ऊपर सामने की ओर रहेगी, सर जमीन पे लगा हुआ, और सांस धीरे धीरे लेते और छोड़ते रहना है।
10 से 15 सेकंड इस स्थिति में रहने का हमें प्रयास करना होता है। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। इसके बाद अब हम लोग करेंगे अर्ध सरल सुलभ पवन मुक्तासन। अपने एक पैर को पीछे की ओर मोड़ेंगे घुटने से और उसको पकड़ के शरीर के ऊपर लाने का प्रयास करेंगे तथा दूसरा पैर जमीन में सीधा लगा हुआ रहेगा। अपने पैर को मुड़ते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे, अपने हाथों की सहायता से उसको शरीर के ऊपर लेके आएंगे। आपका राइट लेग जमीन पे पूरी तरीके से सीधा लगा हुआ और लेफ्ट लेग आपके शरीर के ऊपर, नजर ऊपर की ओर, सर आसमान की ओर जमीन पे लगा हुआ। वापस से पूर्व स्थिति में जाएंगे। अब यही प्रक्रिया हम अपने दूसरे पैर के साथ करेंगे। अपने राइट लेग को पीछे की ओर लेके आएंगे, हाथों की सहायता से उसको शरीर के ऊपर लेके आएंगे। लेफ्ट लेग जमीन पे पूरी तरह से लगा हुआ सीधा, सर जमीन पे लगा हुआ और नजर ऊपर आसमान की ओर। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अर्धचक्र आसन। अर्धचक्र आसन के लिए हम लोग शयन स्थिति में ही रहेंगे। अपने हाथों को सर के ऊपर से ले जाके अपनी कोहनियों को पकड़ के जमीन पे लगाना है तथा अपने पैरों को मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके आना है जितना संभव हो उतना, और अपने शरीर को पैर के पंजे पे और अपने कंधे पे आपको शरीर का सारा वजन लेके एक पुल बनाने का प्रयास करना है। एक बार हम लोग करेंगे अर्धचक्र आसन। शयन स्थिति में आएंगे, अपने पैरों को मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे, अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाके कोहनियों से बांधेंगे अपने हाथों को और अपने शरीर को आपके पैर के पंजों पे लेके आना है। शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। आपके शरीर का सारा वजन आपके पैर के पंजों पे और आपके कंधों पे, गर्दन के पास में महसूस होगा आपको। सांस धीरे धीरे लेते और छोड़ते रहना है। जितनी देर संभव हो उतनी ही देर आसन स्थिति में रहना है। किसी भी प्रकार का अनावश्यक तनाव शरीर को नहीं देना है। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे, अपने पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को खोलते हुए शयन स्थिति में वापस आएंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अर्धचक्रासन की दूसरी स्थिति, जिसमें हम लोग अपने एक पैर को हवा में उठाएंगे और दूसरा पैर घुटने से मुड़ा हुआ जमीन पे लगा रहेगा। शयन स्थिति में अपने पैरों को जमीन पे लगा के रखेंगे, अपने हाथों को सीधा जमीन पे लगा हुआ, सर ऊपर आसमान की ओर जमीन पे लगा हुआ। अपने हाथों को ऊपर ले जाके कोहनी से बांधेंगे, जैसे हमने अर्धचक्रासन की पहली स्थिति में बांधा था, हाथ जमीन पे लगे हुए। अपने घुटनों को मोड़ के पीछे की ओर लेके आएंगे, अपने राइट लेग के घुटने को पीछे की ओर मोड़ के लेके आएंगे, लेफ्ट लेग के घुटने को पीछे की ओर मोड़ के लेके आएंगे। शरीर के का सारा वजन आपके पैरों पे और आपके कंधों पे लेके आएंगे, शरीर को जमीन से उठाएंगे, अपने लेफ्ट लेग को हवा में उठाएंगे। जितनी देर संभव हो उतनी देर उठा के रखना है। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे, अपने पैर को जमीन पे लगाएंगे, पैर के पंजों पे सारा वजन और शरीर नीचे, आपके पैर सीधे। वापस से पूर्व स्थिति में आने के लिए अपने हाथों को खोल के जमीन पे लगाएंगे। यही अभ्यास अब हम लोग अपने राइट लेग के लिए करेंगे। आपका राइट लेग हवा में खोलने का प्रयास करना है।
60 डिग्री के एंगल पे अपने पैर को खोल के रखना है। वापस से दोनों पैरों को मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे। हाथों को ऊपर की ओर ले जाके कोहनियों से पकड़ के जमीन पर लगा के रखना है। नजर ऊपर सामने की ओर। शरीर को सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। सांस धीरे धीरे लेंगे और छोड़ेंगे। अपने राइट लेग को हवा में उठाएंगे 60 डिग्री के एंगल पे। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। पैरों को खोलेंगे, हाथों को खोलेंगे, वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अनंत आसन। शवासन की ही स्थिति में हम लोग अपने शरीर का सारा वजन अपने लेफ्ट साइड में या राइट साइड में लेके आएंगे। अपनी कोहनी को जमीन में टिकाते हुए अपने हाथ की हथेली पे आपके सर का वजन रख के अपना दूसरा हाथ शरीर के आगे लाके जमीन पर टिका के रखना है। जैसे हम लोग टीवी देखते समय सोफे पे या बेड पे लेट के जैसे टीवी देखते हैं, उसी स्थिति में हमें लेटना है। इसे कहते हैं हम लोग अनंत आसन। शवासन की स्थिति में आएंगे। अपने पैरों को और हाथों को जोड़ के रखेंगे। अपने शरीर को राइट साइड में या लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे। अपने हाथ पंजे को अपने सर के नीचे लेके आएंगे। शरीर का सारा वजन आपके सर का सारा वजन आपके हाथों पे, आपका राइट हैंड आप जमीन पे आप लोग लगा के रखेंगे। पैर जमीन पे लगे हुए, नजर सामने की ओर। इस स्थिति को हम लोग अनंत आसन कहते हैं। अनंत आसन की दूसरी स्थिति में आने के लिए अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के बगल में थाइस के ऊपर लेके आके जमीन पे लगाने का प्रयास करना है और आपको हाथ की हथेलियों के सारे पैर के पंजे को पकड़ के रखने का प्रयास करना है। जितना संभव हो उतना पीछे लेके आना है। दूसरे पैर का घुटना मुड़ेगा नहीं, नजर सामने की ओर। पैर को सीधा करते हुए पूर्व स्थिति में जाएंगे। शरीर को सीधा करते हुए हाथों को जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे। अब यही हम लोग अपने दूसरे पैर के साथ यही स्थिति करेंगे। अपने पैरों शरीर को आपके राइट साइड में मोड़ते हुए अपने राइट हैंड पे सर को टिका के रखना है और लेफ्ट लेग को बगल से ले जाके अपने पैर में थाइस के ऊपर लगाने का प्रयास करना है। शरीर को मोड़ते हुए आपके सर को हाथों की हथेलियों को सहारा देना है। एकदम रिलैक्स रहना है, जैसे कि हम लोग टीवी देखते समय लेटते हुए रिलैक्स रहते हैं। अपने पैर को उठाते हुए जमीन पे लगाते हुए घुटने से मोड़कर थाइस के आगे लगाने का प्रयास करना है। अपने हाथों की सहायता से पैर को पकड़ के रखना है और दूसरा पैर एकदम सीधा, नजर सामने की ओर। कुछ देर इसी स्थिति में रहने का प्रयास करना है। इसे हम लोग कहते हैं अनंत आसन। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। हाथों को छोड़ते हुए सामने की ओर रखेंगे। पैर खोलते हुए सीधे रखेंगे। अनंत आसन की पहली स्थिति में हाथ को सीधा करते हुए और शरीर को मुड़ते हुए हम लोग शयन स्थिति में वापस आएंगे। ये हमारी पूर्व स्थिति में हम वापस आते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे वज्र आसन। बैठक स्थिति में आने के बाद हम लोग अब बैठक स्थिति में आएंगे। अपने पैरों को राइट साइड से मोड़ते हुए शरीर का सारा वजन पैर के पंजों पे लेके आएंगे। अपने हाथ की हथेलियों को सामने की ओर रखेंगे। इस स्थिति को हम लोग कहेंगे वज्र आसन। हम सब वज्रासन का महत्व जानते हैं।
खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठना चाहिए, पाचन क्रिया तेज हो जाती है। अब हम लोग जानुहस्त संचालन, अपने पैरों अपने हाथों की हथेलियों को सामने से ले जाकर जमीन पे लगाना है, कुछ इस प्रकार से। शरीर का सारा वजन पैर के पंजों पे रखना है और अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाकर जितना संभव हो उतना मोड़ना है। इसे हम कहेंगे जानुहस्त संचालन। अब इसके बाद हम लोग करेंगे हस्त सिरासन। हस्त सिरासन के लिए हम लोग इसी स्थिति में वज्र आसन में आने के बाद अपने हाथ की कोहनियों को जमीन में लगाते हुए शरीर का सारा वजन अपनी कोहनियों पे और आपके शरीर का सारा वजन अपने आपके थाइस पे रहेगा और नजर सामने की ओर। वज्रासन में आते हुए अपने हाथों को कोहनियों को जमीन पे लगाएंगे, हाथ की हथेलियों पे सर को रखते हुए नजर सामने की ओर। आपका शरीर आपके पैर के पंजों पे और आपके हाथ की कोहनियों पे टिका हुआ। सॉरी, एक कॉल आ गया था, इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक पाद सहस्तासन भुजंगासन। अपने वज्रासन में जिस तरह से हम लोग पहले हस्तासन में आए थे, उसी तरीके से आने के बाद अपने एक पैर को बाहर की ओर खोलकर जमीन पर टिकाकर रखेंगे। बाकी पूरे शरीर की स्थिति पहले की स्थिति की तरह समान रहेगी। वज्र आसन में आने के बाद अपने शरीर का सारा वजन अपनी कोहनियों पे और आपके थाइस पे रहेगा। हाथों को बाहर की ओर खोलते हुए हथेलियों को सर का सारा वजन उस पे, एक पैर बाहर की ओर खोलते हुए बाकी का शरीर का सारा वजन आपके थाइस पे, दूसरे पैर का घुटना सीधा जमीन पे लगा हुआ, नजर सामने की ओर। 10 से 15 सेकंड इस स्थिति में रहने का प्रयास करेंगे। नजर सामने की ओर रखेंगे, धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। वापस में पूर्व स्थिति में आएंगे, पैर को घुटने से मोड़ते हुए आगे की ओर वापस लेके आएंगे, हाथों को जमीन में लगाते हुए शरीर को पीछे की ओर वापस से वज्रासन। इसके बाद हम लोग करेंगे सहज जनासन भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को जमीन पे लगाकर शरीर का सारा आपके चिन्ह और सर आपके हाथ के हथेलियों पे लगा हुआ, हाथ की कोहनी जमीन पे लगी हुई और शरीर एकदम सीधी सरल रेखा में वापस से लेके आएंगे। अब हम लोग शयन स्थिति वापस आपको वज्र आसन में ही अपने हाथों की हथेलियों को जमीन पे खोलते हुए बाहर की तरफ हाथ की कोहनियों को जमीन पे लगाते हुए सामने की ओर नजर रखते हुए आएंगे। अपने दोनों पैरों को बाहर की ओर खोलते हुए अपने शरीर को एकदम सीधा करते हुए
नजर सामने की ओर रखेंगे। हाथ की हथेली बाहर की ओर खुली हुई चेहरे पे लगाकर रखेंगे। कोहनियां जमीन पे लगी हुई, नजर सामने की ओर। शरीर एकदम ढीला छोड़ के रखना है। धीरे धीरे सांस लेनी और छोड़नी है। पैर के पंजे जमीन पे लगे हुए। अब इसके बाद हम लोग सहज हस्तासन, सहज हस्त भुजंगासन, द्विपाद के बाद अब हम लोग मकरासन करेंगे। विपरीत शयन स्थिति में आने के बाद अपने पैरों को बाहर की ओर खोल के रखना है। अपने हाथों को आपस में कोहनियों से पकड़कर जमीन पे लगा करके रखना है, कुछ इस तरीके से। और सर को जमीन पे लगा के, अपने माथे को जमीन पे लगा करके रखना है। अब हम लोग करेंगे मकर आसन। विपरीत शयन स्थिति में आएंगे। सर को जमीन पे लगा के रखेंगे। पैरों को बाहर की ओर खोलेंगे, पैर के पंजे बाहर की ओर। अपने हाथों को सर के ऊपर से लेके आएंगे। कोहनियों के आगे अपने हाथ को ले जाकर बांध के रखने का प्रयास करेंगे। सर जमीन पे लगा हुआ। धीरे धीरे सांस लेनी और छोड़नी है। हाथों को वापस से खोलते हुए आगे की ओर, सर सामने की ओर। वापस से पैरों को अंदर की ओर ले जाके हम लोग अब इसके बाद करेंगे आश्वासन। अपने हाथ को सामने की ओर ले जाके आगे की ओर लाकर जोड़ना है तथा हम लोग शयन स्थिति में रहेंगे। पैर के पंजे जमीन पे लगा के रखेंगे। बस हाथों को सामने की ओर ले जाकर जोड़ना है। विपरीत शयन स्थिति में आएंगे। सर को जमीन पे लगा के रखेंगे। पैरों के पंजों और एड़ियों को आपस में जोड़ेंगे। हाथ की हथेलियां ऊपर आसमान की ओर। हाथों को सामने से ले जाकर ऊपर की ओर ले जाके अपने हाथों को जोड़ना है। सर के ऊपर आपके हाथों को आपस में ले जाकर जोड़ना है। सर को जमीन पर टिका कर रखना है। धीरे धीरे सांस लेनी और छोड़नी है। आपको अपने सांसों पे नियंत्रण पाने का प्रयास करना है। हाथों को खोलते हुए वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। आपके हाथ कमर के बगल में, आसमान की ओर, नजर सामने की ओर, सर सामने की ओर, चिन जमीन पे लगी हुई। वापस से अब हम लोग बैठक स्थिति में वापस आएंगे। अध्वासन के बाद अब हम लोग दत्त मुद्रा करेंगे। बैठक स्थिति में वज्रासन में आएंगे। अपने हाथों को सामने अपने पैरों पे रखेंगे। नजर सामने की ओर। गर्दन धीरे धीरे अपने बाईं ओर मुड़ते हुए बैठेंगे। गर्दन बाईं ओर मुड़ी हुई। गर्दन को घुमाते हुए सामने की ओर लेके आएंगे। अब इसी तरह अपने गर्दन को हम लोग दाहिनी तरफ मोड़ेंगे।
रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है, गर्दन पीछे की ओर मोड़ना है अपने दाहिनी तरफ। वापस से पूर्व स्थिति में आएंगे। इसके बाद अब हम लोग बैठक की स्थिति में स्वस्तिकासन करेंगे। अपने राइट लेग को, पैर के पंजे को उठाते हुए थाइस के ऊपर लेके आएंगे। अपने लेफ्ट लेग के पैर के पंजे को उठा के थाइस के ऊपर लेके आएंगे और अपने हाथों को सामने की ओर मुद्रा में जोड़ते हुए बैठेंगे। कमर की हड्डी सीधी रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी, नजर सामने की ओर। इस स्थिति को हम लोग कहते हैं स्वस्तिकासन। योग की हर स्थिति में हमें अपने श्वसन पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना होता है तथा अपने मन पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना होता है। अब इसी स्थिति में हम अपने हाथों को ऊपर ले जाकर आपस में बांधेंगे। हाथ की हथेलियों को बाहर की ओर खींचते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। इसे हम पर्वतासन कहेंगे। स्वस्तिकासन में इनकी स्थिति में बैठे बैठे ही हम लोग बैठक की स्थिति में पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। वापस से हाथ की हथेलियों को खोलते हुए लेके आएंगे। स्वस्तिकासन की स्थिति में बैठेंगे, पैरों को खोलते हुए जमीन पे लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे वृक्ष आसन का दंड स्थिति में आने के बाद। दंड स्थिति में आएंगे। अपने पैरों के पंजों और रीढ़ियों को आपस में जोड़ के रखेंगे। हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर आपस में जोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से, और पैर के पंजों पे आपके शरीर के सारे ऊपर की ओर अपने शरीर को खींचना है। अभी नहीं। वापस से सारा वजन जमीन पर खोल के रख आसन। और इसी के साथ आज का सत्र हम समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने वृक्षासन का अभ्यास किया, बैठक स्थिति में पर्वतासन, स्वस्तिकासन, दत्त मुद्रा, अध्वसासन, मकरासन, सहज हस्त भुजासन, भुजंगासन का द्विपाद तथा एक पाद सहज हस्त भुजंगासन का अभ्यास, हस्त सिरासन, जानु हस्तासन, वज्र आसन, अनंतासन, अर्ध चक्रासन, अनंतासन की 2 स्थिति में अभ्यास किया, अर्ध चक्रासन की स्थिति में अभ्यास किया, सुलभ पवन मुक्तासन का हम लोगों ने अभ्यास किया और तड़गासन का अभ्यास किया। इसी के साथ हम लोग सर्व मंगल मांगल्य के उच्चारण के साथ सत्र का अंत करेंगे। सभी लोग साथ में उच्चारण करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी के साथ हम अपना सत्र आज समाप्त करते हैं। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। और आप लोग अगला सेशन 9:30 बजे स्टार्ट होगा और 11 बजे से जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सर जो है आपको सिलेबस और बुक्स वगैरह के बारे में बताएंगे।
तो और ठीक 12 बजे से लिटरेरी सेशन का जो है प्रारंभ होगा, जिसमें छात्रों द्वारा जो है आज जो है किसी एक एक्सपर्ट द्वारा जो है लेक्चर लिया जाएगा। तो साथ में जो 2 बजे का सेशन है उसमें हमारे एक्सपर्ट के लिए है, और 3 बजे भी हमारे एक्सपर्ट आएंगे। तो आज सभी लोग जो है टाइमली जो है जुड़ जाइएगा। तो अगले सेशन में 9:30 बजे तक सब लोग जुड़ जाइएगा। हालांकि समय कम है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए 9:35 तक जुड़ जाइए सभी लोग। तो सभी लोगों को धन्यवाद। मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग उपस्थित सभी को धन्यवाद। थैंक यू सभी लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर।